Variable. In mathematics, a variable is a symbol and placeholder for a quantity that may change, or any mathematical object. In particular, a variable may represent a number, a vector, a matrix, a function, the argument of a function, a set, or an element of a set. Welcome to Philcom. Now, simplify the concept of declaring variable in different programming language. If you want to declare a variable in Python, we must need to follow some rules. जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले डिक्लेयर किया गया है x यानी कि नेम ऑफ द वेरिएबल, देन equal is the assignment operator and then the value that you want to store in the variable. 4 is the integer value that we are storing in x. This is called the data type. Data type means the type of the data or the value which we are storing in the variable. Here 4 is the integer value that we are storing in the variable called x. Now let's talk about comment. Comment यानी कि जो लाइन हम सिर्फ हमारे खातिर या फिर हमारे बेनिफिट के लिए या फिर हमारे समझने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग पे, उसे हम कमेंट बोलते हैं. कमेंट हम डिक्लेयर करते हैं पाइथन पे हैशटैग देके, ताकि कंपाइलर इसे इग्नोर कर दे और सिर्फ इसे हम हमारे काम पे ही यूज़ कर पाए रीडेबिलिटी के लिए. उसी प्रकार से यहाँ पे y वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है. y इज इक्वल टू सैली व्हिच इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल. और y का अगर हम बोले कि y का डेटा टाइप क्या है, y का डेटा टाइप है str यानी कि स्ट्रिंग. और सैली एक स्ट्रिंग है, एक नाम है. जब भी हम नाम को यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज़ करते हैं तब हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज x here, and if you want to print the value of the y variable, then also we can print and then opening brace, then y and then closing brace, we will get the output of the y variable. Now talk about the basic structure of variable in C programming language. C programming language पे अगर आप देखें, it's little bit different than the Python language. At first we need to declare the data type of that particular data, that what type of data we want to store in the variable by the assignment operator. At last we are giving the value which is 3 here. So और एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कॉमा देके मल्टीपल वेरिएबल को यहाँ पे एक ही लाइन पे लिया गया है, जैसे कि d इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू 5. पाइथन पे भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉमा देके हम डिफरेंट वेरिएबल को ले सकते हैं या फिर वैल्यू के असाइन भी कर सकते हैं. वेरिएबल जैसे कि मान लीजिए int और हम लोग लिखे d, इसको बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन. और d इज इक्वल टू 5, इसे बोला जाता है असाइनमेंट ऑफ वैल्यू इनटू द वेरिएबल. इसी प्रकार से कैर, इसी प्रकार से फ्लोट, ये सब डेटा टाइप है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं. फ्लोट को हम लोग पाइथन पे भी यूज़ करते हैं. अगर फ्लोट को हमें पाइथन पे यूज़ करना है तो पहले हमें डेटा टाइप फ्लोट को नहीं लिखना है, सिर्फ हमें वेरिएबल को लिखना है व्हिच इज़ द वैल हेयर and then equal and then the 5.2. 5.2 is the float data type, and which we also can tell it's a real number. Now if we talk about the PHP programming language, here same similarity we can see which is the $sign. पहले हमें $sign को लिखना है, उसके बाद the name of the variable, then the assignment operator, then the data that we want to store. And this is the string data type, this is the integer data type, and this is the float data type that we saw in the Python and also in C programming language. So this is the basic concept of programming variable declaration in different programming language. Now we are in code editor. तो यहाँ पे पहले एक variable हम लोग यहाँ पे declare करेंगे which is the name here. Then we are giving the value FILLCOM here और उसे हम print करेंगे. Print, देखिए यहाँ पे Philcom आ चुका है. यानी Philcom जो प्रिंट हम लोग करना चाहते हैं वो कैसे प्रिंट हुआ, नेम वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को असाइन किए और उसी वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग कॉल किए. पर यहाँ पे देखने में जितना आसान लगता है, एक्चुअल में इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम नहीं होता है. क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे समझते हैं. क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे
फिलकॉम को स्टोर करते हैं नेम वेरिएबल पे, तब नेम वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करता है जो कंप्यूटर मेमोरी जो रैम है, रैम के अंदर एक जगह को रिजर्व किया जाता है ताकि फिलकॉम को वहाँ पे स्टोर किया जाए। और स्टोर करने के बाद एड्रेस है, उस एड्रेस को स्टोर किया जाता है नेम वेरिएबल के अंदर और उसी एड्रेस को यहाँ पे कॉल किया जाता है। नेम के अंदर एक्चुअली में रहता है एक एड्रेस जहाँ पे फिलकॉम को स्टोर किया गया है इन द मेमोरी। तो इसी प्रकार से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसी प्रकार से बैकएंड पे काम होता है। जो एग्जैक्ट प्रोसेस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसी प्रकार से ही होता है। यहाँ पे चलिए अभी एक इंटीजर वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल के अंदर। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे तो हमें पहले लिखना पड़ता है इंट, उसके बाद मान लीजिए वेरिएबल का यहाँ पे हम लोग नेम लेते हैं नंबर एंड देन इक्वल टू 1, उसके बाद सेमीकोलन। पर ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है इसीलिए हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे यहाँ पे और पहले डेटा टाइप भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ नंबर इज इक्वल टू 1। पर पाइथन को कैसे पता होगा कि नंबर इज इक्वल टू 1 जो है वो इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है? तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है उसे पता करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है टाइप, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस, उसके अंदर द वेरिएबल नेम दैट वी वांट टू गेट द एग्जैक्ट डेटा टाइप। यहाँ पे रन करेंगे, देखिए ASTR यानी कि स्ट्रिंग है, नेम इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा इंटीजर, क्यों? क्योंकि 1 इज़ अ इंटीजर वैल्यू। पर अगर हम यहाँ पे 1.1 कर देंगे तो ये एक रियल वैल्यू हो जाएगा, यानी कि एक फ्लोट हो जाएगा। सो एक फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाएंगे। पर कुछ चीज़ है जो समझना पड़ेगा कि वेरिएबल जो लीगल वेरिएबल होता है वो क्या होता है। अगर आप W3 स्कूल पे जाएंगे, वहाँ पे वेरिएबल नेम्स पे जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि लीगल वेरिएबल नेम्स। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल, different way that we can declare the variable, but why we need a different way or different process while we are declaring the variable? Because यहाँ पे क्या है कि देखिए my var एक ही साथ लिखा गया है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है my और एक है var यानी वेरिएबल। सो my var is a different word, my is a different word, var is a different word. We are adding two different word in a one line and calling it a वेरिएबल। पर मुझे अगर एक बड़ा सा वर्ड लेना है, 2-3 वर्ड को ऐड करना है, तब क्या होगा कि रीडेबिलिटी कम हो जाएगा। जब भी हम बोलेंगे तब पढ़ने के लिए हमें दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम अंडरस्कोर वार ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर वार भी लिखते हैं, या फिर माई देन कैपिटल V उसके बाद वार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाएंगे। और कुछ है यहाँ पे इलीगल वेरिएबल बोला जाता है इसको, जैसे कि माई वार जो लिखा है उससे पहले हम लोग एक इंटीजर या फिर नंबर यहाँ पे ऐड कर दिए। चलिए इसको यहाँ पे ऐड करके एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 2 ऐड कर दिए, यहाँ पे भी हम 2 ऐड किए। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ चुका है, जहाँ पे दिखा रहा है कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर हमने डाले ये एक्चुअली में इलीगल है। तो अगर हम यहाँ से निकल के बाहर में एक जैसे कि 3 डाल दिए, मान लीजिए यहाँ पे भी हम 3 डाल दिए और उसको हम रन किए, देखिए यहाँ पे कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आया। इसका मतलब कि पाइथन जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसका जो डेटा टाइप होता है उसका थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। एक होता है लीगल वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होता है इलीगल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ताकि हमें याद रखना है कि मिडिल में स्पेस नहीं पड़ना चाहिए, माइनस साइन नहीं देना चाहिए, पहले ही हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले हम चाहे तो माई वार का V कैपिटल कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं वर्ड को सेपरेट रखने के लिए। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो पे इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।